اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں، لیکن جہاں پر فرائض منصبی کا سوال ہے، آپ سے بھی، ہم سب سے بھی، حکومت کے ممبران سے بھی، جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے، اس ملک کا آئین، مملکت خداداد پاکستان کا آئین، اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ کا آئین، عوام کا آئین، کم از کم اس آئین کو کے ضابطے کا تو خیال کر لیا کرے۔ اس طرح باہر سے معاشی پالیسیاں اور اس پر اقدامات کرنا حکومت کی، آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کیا، معاشی پالیسی کو بھی تباہ کیا، ملک کے اندر امن و امان بھی تباہ ہوا آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی قوم اپنی ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہے تو میں نے اس ملک کے عوام سے زیادہ وفادار اس ریاست کے ساتھ کسی سیکھا کہ جس کے لیے آپ اس قسم کی پالیسیاں لاتے ہیں اور وہ پھر بھی عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے۔ آج جو ظلم اور بربریت آپ قوم پر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بجٹ میں کوئی عوام پر ٹیکسز نہیں لگائے، آج آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ہم سوال کر رہے ہیں جناب اسپیکر آپ سے کہ آرڈیننسز آپ نے لائے ہیں، آپ نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین کے ساتھ متصادم ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، آپ اس پر جواب نہیں دیتے۔ اور یہاں پر ایک ممبر قومی اسمبلی جو حکومت کی طرف سے جواب دے رہا ہے، وہ ان سوالات کو ایڈریس نہیں کر رہا جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے، اور اپنے معیشت کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں وہ زبردست ہیں۔ اگر تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں زبردست تھی تو آپ کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ آپ کے بعد دوسرے وزیر کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا مجبوری تھی؟ اگر پچھلی حکومتوں کا قصور تھا تو آپ کی وزارتوں میں تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں اور کیوں لائی گئی ہیں؟ آج ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان حقوق کے جو آئین نے ان کو دیا ہے، جو قانون نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ اپوزیشن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کے IMF کے پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے۔ آج آپ اپنے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں، آپ اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، ہم آپ سے سوال نہ کریں، ہم حکومت سے سوال نہ کریں، تو پھر وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور ہمیں جواب بھی ملے۔ آپ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سینٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ عوام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ مزدور طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ کسان طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ طلباء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ اساتذہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے کہ جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے؟ ہم ان کے پاس یہ عوام کے حقوق کی بات وہاں لے جائیں، ان سے منت کریں کہ آپ ان حکومتی اراکین کو سمجھائیں۔ آپ نے قومی اسمبلی کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ یقین جانیں گزشتہ 2 ہفتے قبل یا 1 ہفتہ قبل انتخابات ہوئے، آپ نے قانون سازی کی، ان قانون سازی پر جب اپوزیشن کی طرف سے عوام نے تائید دی، آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ جس طرح آپ یونین کونسل
जिस तरह आप विलेज काउंसिल, जिस तरह आप तहसीलों को, खुदारा कौमी असम्बली को इतनी वक़्त तो दे दे, यूनियन काउंसिल की जितनी वक़्त तो इस कौमी असम्बली को दे दे। जिस तरह आप ऐवान चला रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे जहन में सवालात हैं कि आप एक गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये तो अलग बात है कि एक चीज़ आप पेश कर रहे हैं उस पर मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा या मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा, लेकिन जो तरीक़ाकार और ज़ाब्ता-ए-कार है उस पर हमें एतराज़ है। आप अपोजिशन को नहीं सुन रहे। 2 मरतबा आपने कहा कि काउंट बी मेड और किसी ने आपके कहने पर यहाँ पर अमल नहीं किया। उसके बाद आपने प्रोसीजर जारी किया, एजेंडे को जारी रखा और काउंट बी मेड वाली रूलिंग आपकी ऐसी ही रह गई जिस तरह मेरा काम सिर्फ ये असद साहब एक मिनट होल्ड ऑन। नंबर 1 ये कि मैंने जो रूल्स के मुताबिक किया है, अगर आपने नहीं किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 2 जो आपने बात की, मैंने जो किया है मैंने कानून के मुताबिक किया है, रूल्स के मुताबिक किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है, कोई काम ऐसा नहीं किया। मैं मुश्ताक अली साहब को वेलकम करता हूँ, KPK की स्पीकर तशरीफ लाए हैं, इसको वेलकम करते हैं। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, आपने ये कानून साजी तो इस पर तो हमारी राय आनी ही आनी है जिस तरह आपने कहा, लेकिन जिस तरह आपने यहाँ पर दीगर कानून साजी की ऑर्डिनेंसेस जो लैब्स थे उनको दोबारा लाया, हम उसको गैर आईनी समझते हैं। आपने रूलिंग दी है, आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि आप रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन इससे कबल भी इन कुर्सियों पर ऐसे स्पीकर बैठे हैं कि जिनकी तारीख अच्छे अल्फाज से याद भी करती है और अच्छे अल्फाज से याद भी नहीं भी करती। तो आपके रूलिंग से कम से कम इस कुर्सी की तारीख़ में एक और बाब का इजाफा होगा। लेकिन इस हवाले से भी कि यहाँ पर स्पीकर साहब आपके एक वज़ीर ने पूरी अपोजिशन को ताना दिया कि आपने बल्दियाती इंतखाबात में इनको मुस्तरद किया। जनाब स्पीकर, आपके वज़रा की और आपके अपने हलकों की इंतखाबात में जिस तरह की गुफ्तगू हुई, वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि आपने 70 करोड़ रुपए जारी किए, आपके वज़रा ने जारी किए, आपने लोगों को इक़्तिदार से धमकाने की कोशिश की, आपने लोगों को पैसों से खरीदने की कोशिश की, आपने लोगों को प्रोजेक्ट देने की लालच दी। लेकिन एक बात जनाब स्पीकर, मैं अपनी ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आप जो है ना जनाब स्पीकर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा ने आपके इक़्तिदार में होते हुए आपकी पार्टी को मुस्तरद किया, आपके प्रोजेक्ट्स को मुस्तरद किया, आपके पैसों को मुस्तरद किया, और जो अज़ला बाकी हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हों, चाहे वो पंजाब के अंदर हों, चाहे वो सिंध के अंदर हों, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हों, इंशाअल्लाह आपका नविश्ते दीवार लिखा जा चुका है। आप अपने अंजाम को पढ़ लें और आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह इस इक़्तिदार में होते हुए भी आपने लोगों को 66 तहसीलों में सिर्फ आप 15 तहसीलें जीते हैं, सिर्फ 15। और मैं चैलेंज करता हूं, आप आज भी नहीं जीते और आप कल भी नहीं जीतेंगे इंशाअल्लाह। नहीं वैसे एक मिनट कबूल किया था जनाब स्पीकर। गपशप के लिए एक बात करते हैं जनाब स्पीकर, आपके अपने इलाकों में पोजीशन अच्छी नहीं है जनाब स्पीकर। 2.5 अरब रुपए और 70 करोड़ की लालच गपशप नहीं होती, ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। आपकी अपनी सवाबी के अंदर मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि आपके अपने तहसील के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशनों पर आप हारे हैं और आपने तमाम पोलिंग स्टेशनों को
स्टेशनों को कवर किया सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपको जवाब देना होगा। इलेक्शन को भी आपके साथ मेरा चैलेंज है। जवाब देना होगा। आपने आवाम को भी जवाब देना होगा। आपके साथ मेरा चैलेंज है। जनाब स्पीकर, एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूँ। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसे नहीं मैं इसको चैलेंज करता हूँ। जनाब स्पीकर, कि ऐसे अगर नहीं चलेगा। आपने ये साबित कर दिया, जनाब स्पीकर, ऐसे नहीं आपको चलेगा। हर जगह शिकस्त मिली है। आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब गलत बयानी स्पीकर, कर रहा है। आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी। जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी। और जब आपको इलेक्शन के एक रोज कबल रिपोर्टें आ जाती है कि आप सूबा हार रहे हैं, तो आपका इमरान खान कहता है कि मुझे डेरा इस्माइल खान और मुझे पेशावर और मुझे बन्नू बहार सूरत चाहिए। आपको आवाम ने बहार सूरत मुस्तरद किया है, आपको आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। ऐसे नहीं है जनाब स्पीकर। अगर मैं इस फोरम पर एक बात कर रहा हूँ, आप कहां से कहां चले गए, अपने टॉपिक से आगे चल गए। आपको फिर इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। आइंदा शामुद कुरैशी साहब प्लीज, शामुद कुरैशी साहब प्लीज। वाइड अप कर ले प्लीज, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले। मैं एक आखिर में एक बात करना चाहता हूँ। जी 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 प्लीज ऑन करें, ऑन करें। असद महमूद, मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि ये कैसा मुल्क है कि यहाँ पर इमरान खान के घर को तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन कराची में 40-41 साल से बनी गई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। यहाँ आप कौमी असम्बली से बाहर निकले, मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि वो गैर कानूनी है और आपकी हुकूमत में उनको कहा जा रहा है कि आप पेनल्टी भर दे, आपको रेगुलराइज किया जाता है। अवाम की झोंपड़ियों को न गिराएं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप अगर ये इक़दाम करना चाहते हैं, आप बिला तफरीक करें। आपको कोई ताना नहीं देगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा, लेकिन अगर मसाजिद शहीद होंगी, ऐसी मसाजिद भी शहीद की गई है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले की वहाँ तामीर हुई है, आप उन मसाजिद को भी शहीद कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये संजीदा नौयत का मसला है। मसाजिद के हवाले से आपको रूलिंग देनी चाहिए। ये मसला अहम मसला है, अवाम के अंदर भी इस पर इश्तिआल आएगा। खुदा न खास्ता आपकी कराची में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस तरह के हसास नौयत के मसाइल का नोटिस आपको लेना चाहिए और उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू। कराची वाली मस्जिद पर रूलिंग दे दे। रूलिंग वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जी वाइड अप कर ले प्लीज। जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप आईन के खिलाफ रूलिंग देते हैं। आपकी बात हुकूमत के हक में हो तो आईन बन जाती है, और आपकी बात कौम के हक में हो तो आप उसमें दूसरे इदारे ले आते हैं। जनाब स्पीकर, अवाम इस हवाले से जिस तरह अमन व अमान के मसाइल हैं, जिस तरह मईशत के मसाइल हैं, जिस तरह हम दुनिया के अंदर अकेले हो गए हैं। मैं संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी आपने शुरुआत का इस ऐवान के इजलास में शुरुआत ही ऐसी हो जाती है कि हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, ये सब दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये बात करना चाहते हैं। ये मुल्क हम सब का है। अगर आपके गलत फैसलों की वजह से मुश्किलात कौम को दरपेश होती हैं, मईशत को दरपेश होती है, हवाले से हो या दाखिला उमूर के हवाले से हो, कम से कम उसमें आपको अपोजिशन को सुनना चाहिए। आज भी आपने नहीं सुना, और हम चाहते हैं कि आप आज के इस कार्रवाई को मनसूख करें और दोबारा इस ऐवान में संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए। शामुद कुरैशी साहब प्लीज।
شکریہ اچھا جناب اسپیکر، آپ نے تینوں بڑی جماعتوں کے فاضل ممبران کو موقع دیا، پی ایم ایل این کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو کا اظہار کیا۔ جناب والا، ہمیشہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں،